Hello everyone, my name is Ramveer from Weapons Academy. My dear student, today I am present another topic of class 11th history, theme 7. 7th theme means changing cultural traditions. In this theme we will discuss about the importance of humanism and humanity, artists, philosophy, science and many more things which were developed at this time. So let's start this chapter from the revival of the cities, the earliest cities where the humanism became most popular in the world. That is started by the country of Italy. Do you know that Italy fragmented area in 10th or 11th century. In 12th century there was a revival. Many people want changes in this country and many centers of these, it means many centers. You can see the map. Look here. These are the important cities. This city, Padua was very famous at that time for humanism thought. There were many subjects taught there. Artists, law, philosophy, science, economics and business studies, even history, geography, these were the main study subject at there. People of European countries, nearby countries came to Padua and learned to teach. Next, Venice. Venice, the merchant of Venice, William Shakespeare wrote about this city. Florence, Rome, Roman Empire. You know that Roman Empire, the Rome was the capital at that time. So these were the famous cities which give a important message to human bodies about human being, about the revival of the science, history and about the philosophy also. Okay, these were the famous cities. Now another topic if we will discuss. The topic is humanism. दोनों topic complete हो चुके हैं. Humanism. Cicero was a great people at that time, and Cicero actually great scholar थे और उन्होंने एक idea दिया था about the humanism thought, and he described humanities. Humanities एक word है जिससे लिया गया है, and this word have been taken about the study of the human as an different way. So this is the philosophy, this is the thinking of the people. Now Arab country, what were the contribution of Arab in at that time? Arab contribution, we can discuss that Arab countries give the ideas of the mathematics, they give algebra and many more things which were included at the subject of that time, or medicines, chemistry, botany and many more things were used by the people of that era. Ibn Sina, Al-Razi and Ibn Rushd, these were the famous people, these were the famous philosophers and the great person of the Arab who contribute lot of in the field of the humanism. Now our next topic is artists and realism. Who were the famous artists at that time? There were many artists who give the shape of the world and they give the message of the humanism, art, architecture, botany. They all are discussed at that time. Artists inspired by studying the work of past. They were very inspired by the study of past, and there were many artists at that time, जैसे Donatello, who was a great artist and he described many more things. Andres Vesalius was also 15 and 40 and 64 till he described the many more topic to identify the humanism thought. And in 1416 Donatello 3065 broke a ground with his lifelike status. Actually he was a great artist at that time and he described
पेंटिंग आर्टिस्ट की तरह से उसने एक ऐसी चीजें बनाई जो उस समय बहुत ही अद्भुत दी गई थी। नाउ यू नो दैट द लियोनार्डो दा विंसी हु मेक द biggest and surprising wonderful painting of Mona Lisa, and he was in 1452 1519 who had an amazing folks, and he described spent more things about the Last Supper। उसकी दो फेमस पेंटिंग है, मैं आपने आपको बताया लियोनार्डो दा विंसी पेंटेड टू फेमस, तो वर्ल्ड लेवल पे जानी जाती है द प्रिंस, एक तो देखा जाए इसमें मोनालिसा जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, और दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर, एंड ही डिस्क्राइब पेंटेड ऑल द वेरी टीनी थिंग्स इन अ अमेजिंग फैक्ट। ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया जो लोग आज उनको जानते हैं। नाउ आर्किटेक्चर की बात करें तो देयर वर मैनी पीपल, जैसे सेंट पीटर्स चर्च है, फिलिपी ब्रुंडलेस ची, दे डिस्क्राइब दे आर्किटेक्चर्स में उन्होंने एक ऐसा काम किया है, मतलब कि बड़ा अद्भुत चर्चेज बनाए गए थे एट दैट टाइम। रोम, फ्लोरेंस एंड पाडवा, ऑल दीज सिटी हैव द सिंबल एंड दे हैव द फुल ऑफ प्लेसेस एट दैट टाइम जहाँ पर सारी चीजें ये वो हुई थी। तो ये देखा हमसे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, यू नो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ प्रिंटेड चाइना गिव द फर्स्ट प्रिंटेड बुक टू द वर्ल्ड एट दैट टाइम इन दिस सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस वाज द टाइम ऑफ 14th-15th सेंचुरी। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो आपको पता सभी को ये बनाई गई थी, और सेंट ये बुक जो थी बहुत बड़े एपर्सेस जॉन गुटनबर्ग ने बनाई थी, आप लोगों को पता जर्मन था वो। एंड ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? वुड ब्लॉक प्रिंटेड स्टार्टेड इन चाइना, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन मार्को पोलो अराइव्ड इन चाइना ही ब्रॉट दिस नॉलेज टू द यूरोपियन कंट्री। और जब वो मार्को पोलो पहुंचता है अपने नगर वेनिस वगैरह में, तब उन्होंने ये प्रिंटिंग जो सिस्टम था वहां पर डेवलप कर दिया था। और उसके बाद क्या होता है, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज स्टार्टेड। आप लोगों को बताना है बाइबिल वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक बाय द गुटनबर्ग प्रेस। ओके, आफ्टर सम टाइम्स आपने 10th क्लास में पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं आप लोग, चैप्टर नंबर 5 में हिस्ट्री में, प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, नाउ द कंसेप्ट, अब एक इसमें चीज आती है वो होते हैं नई चीजें, ये हो गया डिबेट विद रिलीजन्स। एक्चुअली रिलीजन हैव इन यूरोपियन कंट्रीज, रिलीजन हैव अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम। Two community have never they survive even in country. Christianity was also spread, but Roman Catholic Church was strong and Pope area ज़्यादा, मतलब आप लोगों को पता है ये हो गया था। और इसमें जो है क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में, प्रोटेस्टेंट और क्रिश्चियनिटी कैथोलिक्स, इनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। सो एट द टाइम इसमें नया डिबेट शुरू हो जाता है। इसमें जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर ही वाज अ ग्रेट पर्सन एंड जर्मन मॉन्क था ये मार्टिन लूथर। 1517 के आसपास इसने एक थ्योरी दी थी 95 थीसिस। इन 95 थीसिस ही डिस्क्राइब अबाउट द, ही क्रिटिसाइज द रोमन कैथोलिक चर्च एंड ही गिव द न्यू मॉडर्न सिस्टम ऑफ द रिलीजन विच वॉज फ्री बाय द करप्शन। तो उसने एक जो न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, उसने एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक नया धर्म चलाया था। इट वाज टोटल अगेंस्ट द कैथोलिक्स। तो उसने कुछ रिचुअल्स पे प्रहार किया था, और कैथोलिक चर्च स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, रोम, इस तरह के सिटीज में क्या हुआ, जो कैथोलिक चर्च थे वो धीरे धीरे ब्रोक डाउन होना शुरू हो गए थे, और मार्टिन लूथर के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये डिबेट क्रिश्चियनिटी होता है, इसमें डिबेट यही हुआ था कि लोगों ने इसको खत्म कर दिया, मतलब एक नया रिवाइवल शुरू होगा, एक नया रिबर्थ हुआ लोगों ने। और प्राचीन जो आडंबर थे, जो उनकी क्रिटिसाइज की लोगों ने, तो उससे एक लोगों के दिमाग में नई नई थिंकिंग ऑर्डर पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, और उन्होंने नया सोचना शुरू कर दिया। ओके, नाउ देन इज द कोपरनिकन रेवोल्यूशन। कोपरनिकस, डू यू नो अबाउट द कोपरनिकस? ही वाज अ ग्रेट पर्सन। कोपरनिकस एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक थ्योरी दी थी, कोपरनिकस थ्योरी को नाम दिया था। इट वाज डिपेंड ऑन द सोलर सिस्टम। आप लोगों को बताना चाहिए कोपरनिकस ये मार्टिन लूथर की तरह क्वेश्चन था, और कोपरनिकस 1473 से 1543 तक जो है ये इनका जीवन लाइफ था। तो उन्होंने एक नया सिस्टम दिया अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड अबाउट द सोलर सिस्टम।
सब जानते हैं इस चीज़ को कि भाई कोपरनिकस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने बताया था कि सन इज स्टेबल और बाकी चीज़ें उनके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च इस चीज़ को नहीं मानते थे शुरू में। तो उससे क्या हुआ कि इससे इनको अपनी जान से भी जाना पड़ सकता था, तो इसलिए बोलते नहीं थे। आफ्टर आप लोगों को पता होना चाहिए जो उन्होंने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री एक वर्ड दिया है, उसमें यही दिया है कि हाउ द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सोलर सिस्टम की पूरी उन्होंने व्याख्या की थी इसमें। द मोशन इज उनकी जो फेमस बुक बनी थी द मोशन, आप लोगों को पता न्यूटन की बुक है, गैलीलियो, ये सब लोग थे जिन्होंने बाद में दिखाया कि वास्तव में अर्थ कैसी है, कैसे रोटेट करती है और सन कैसे रोटेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, और इनकी डेथ के बाद ही ये चीज़ें पब्लिश हुई थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, नाउ ये हो गया रेनेसेंस। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। रेनेसेंस इज इन यूरोप। रेनेसेंस क्या होता है? टोटल रीबर्थ। रीबर्थ देखो पूरी दुनिया का देखा है डार्क एज से निकल कर लगभग 12th सेंचुरी तक पूरा यूरोप डार्क एज में, आप लोगों को पता है कि डार्क एज कहलाता है। तो उसमें क्या था, यूरोपियन जो विचारधारा थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए, और चेंजेस इतने आए कि वो लोग क्या हो गए, वो लोग इससे वो हर चीज को अगेंस्ट होने लगे थे। तो इससे क्या हुआ, रेनेसांस हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पास्ट को आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन फिलोसफी, लॉ, इन सभी चीजों को दोबारा उन्होंने रोमन एम्पायर में जो थी उनको रिवाइवल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे एक नई थिंकिंग आई जिसको रेनेसांस नाम दिया गया था, और वहीं से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रेनेसांस शुरू हुआ। पुनर्जागरण जिसको हम लोग कहते हैं, यहीं से शुरू होता है द फ्यूचर ऑफ यूरोप, यहीं से शुरू होता है। यूरोप इतना एक पावरफुल कंट्री, एक कॉन्टिनेंट कैसे बना, उसके कितने सारे कंट्री इतने पावरफुल कैसे बन गए, वो शुरू होता है इटली से, जहाँ से पुनर्जागरण शुरू हुआ था, जहाँ से रेनेसांस शुरू हुआ था। Okay, last, women artists. There were many women who describe about the importance of the realism and became the emperor at that time. Do you know that in Roman Catholic Church women have a limited scope? उनके पास बहुत कम क्षेत्र होता था, they have not many freedom and they can't form their association, political party, even right to vote उनको बहुत कम था। They have not a right of property, है ना। तो बाद में क्या हुआ, मैनी वुमेन एस्पायर हो गई एंड बिकेम इसाबेला, जिससे नाम ले रहा हूँ आपको, मार्सिसा एंड मांचुआ। दीज वर द फेमस वुमेन हु डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेडी। सो ये हुआ था उस समय। तो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स एंड दीज टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमनिज्म थॉट एंड रेनेसांस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।